Hello students, I am Vipul Mishra, Faculty of Commerce Management and HR at OSN Academy और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी आईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की तो उसमें आईआर सिर्फ एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, राइट। बट अगर हम बात करेंगे एचआर की यानी कोड 55 की, तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि आपकी पूरी यूनिट बनाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआरएम। और अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही एक ऐसा पार्ट है जहां से तीनों ही स्ट्रीम में इक्वल क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डू नॉट इंक्लूड, मींस यहां पे हमको बताना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कौन सी चीज सही नहीं है, राइट। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन आर outcome of employment relationship in an industrial enterprises. I think it is right. Then industrial relations promote the skills and methods of adjustment and cooperation with each other. Third, industrial relations create complex rule and regulation to maintain coordinal relationship. And last is industrial relations system creates an environment of distrust and conflict. So student, what is the right answer? The right answer should be D, I think so. Yes, it's D. Why? Because industrial relation is a positive approach, जबकि जो आपका डी पार्ट है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिखा रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ उसके नेगेटिव थिंग्स को यानी उसमें आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसमें आने वाले डिस्प्यूट्स को ही हाईलाइट करेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ टर्म which denotes the relationship between the employer and employee and their associations, right? So this is a positive term and having a very positive view in order to recognize, in order to identify the reason behind the conflict and how to remove those conflicts. So right answer is D. The very next question, identify the false statement about ILO. ILO stands for International Labour Organization, right? So first is ILO is a tripartite body. Tripartite means जहां पे तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं. Second, India was not a founding member of ILO as it did not get its independence, because ILO जब बना था 1919 में, उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. Then another is settlement machinery. देखिए, जब हम बात करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी की, इट मींस देयर इज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट वहां पे अप्लाई होगा जहां पे डिस्प्यूट ऑलरेडी होगा, राइट। जबकि प्रिवेंटिव मशीनरी वो मशीनरी है या वो मेथड्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने ही नहीं देंगे। उससे मतलब ये सेटलमेंट मशीनरी इज अ रिएक्टिव अप्रोच एंड the preventive machinery is the proactive approach. जैसे code of discipline, grievance procedure, works committee, joint management council, they all are preventive type of machinery. So here the right answer should be A. Yes, it is A, because consultation is not a method of settlement at all in the act, right? कंसल्टेशन कहीं पे नहीं आता। हाँ, वर्क्स कमेटी आता है, वेयर 100 or more workers working on an ordinary day, there is a provision for works committee, right? Then works committee in which representatives from both employer and employee constitute the committee with equal ratio. Then conciliation, we all know that conciliation has its three parts: conciliation officer, board of conciliation and court of inquiry. And adjudication, we all know that arbitration and adjudication. Adjudication is also known as the ultimate legal machinery for the dispute settlement in India. तो इसका सही आंसर होगा A.
कम टू द नेक्स्ट। बहुत ही आज जितने भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इनमें से एक एक क्वेश्चन मिलता हुआ मिल जाएगा, राइट। Who has coined the term industrial democracy? तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे what exactly democracy means। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो टर्म है वो कहां पे यूज हुआ था। देखिए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब है when people have right to raise their voice। जब भी उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई उन्हें सता रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दे आर फीलिंग वीक अगेंस्ट दी अदर पार्टी, देन इफ दे हैव राइट टू रेज देयर वॉइस, अगर उनके पास ये हक है कि वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, देन इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। जैसे आपने WPM सुना होगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन विच ईच ऑफ द पर्सन has right to be part of the management। मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग होगी फ्यूचर में उसका भी हम हिस्सा हो सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी बी, सिडनी एंड वेब। Why Sydney and Webb? Because Sydney and Webb have coined the term collective bargaining। collective bargaining जिसको कि हम जानते हैं, collective bargaining is a very strong type of preventive machinery in industrial dispute। collective bargaining is the process of getting the settlement in case of a dispute इन अ अमिकेबल मैनर। जब हम कोई भी दो पार्टी हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो एक अमिकेबल, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सेटलमेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। व्हाई वी यूज द टर्म कलेक्टिव? Because it is a group activity, the representative of both the groups, whether it is from employer side or from employee side, they came into contract for the process of the settlement। तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को ही सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड, सबसे स्ट्रॉन्ग वे माना गया था किसका? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का। थ्रू दिस वी कैन पुट our thoughts, we can give our ideas and we can raise our voice, right? So that's why the right answer is Sydney and Webb। Come to the next question, that is question number 5। This is not actually a single question, this is a combination of questions। So match the following। On the column 1, committees and commissions are there, on the other hand measured suggested, means committee and why, what is the motive behind that is given, right? You have to match the followings, right? The trade unions, the Royal Commission on Labor, Industrial Policy Resolution, and First National Commission on Labor। On the right hand, improvement of production, unions to discourage absenteeism and interruption of work। Then second is growth of collective bargaining, recognition of union, prohibition of strike and lockout। So A will be matched with 2, this one। Then registration of trade union is also important, and appointment of labor officer। So the right answer should be B। Why? Because A will be third, just a minute, A will be third, means the trade union act makes the things to be registered, right? Then B is equal to 1, why B is 4, just Royal Commission on Labor is the has suggested the appointment of labor officer, right? Then C1, industrial policy resolution, because why? Because it has changed in terms of production, absenteeism and interruption towards work। And last, that is D is equal to 2, that is your First National Commission on Labor regarding the improvement of collective bargaining। So this is the right match actually। स्टूडेंट जब भी हमारे पास इस तरीके की मैथ दी कॉलम आते हैं तब हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं होता बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन होता है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और उनमें से हम एक या दो को सॉल्व करने में सफल होते हैं तो हम पूरी ही पजल को सॉल्व कर लेते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। अ जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड JCB of industry and labor was set up in 1951
with the initiative of VV Giri, we all know that, JL Nanda, Morarji Desai and जगजीवन राम। देखिए इन चारों लोगों ने ही इंडस्ट्रियल रिलेशन की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। गिरी की अप्रोच हम लोग पढ़ चुके हैं आईआर के केस में। यहां पे जो राइट आंसर शुड बी जीएल नंदा, because he introduces and take initiative regarding joint consultative board. Joint consultative board was basically a committee formed by representative from both the parties in order to identify and resolve the conflict between the parties. So right answer should be B. Yes, GL Nanda. Come to the next question, number 7. Industrial conflict is a part of broader social conflict between classes and used to explain fundamental historical process of change and development in human society. The above statement was given by, right? So here 4 options are there: Frank Tannenbaum, Adam Smith, then Karl Marx and Cole. So स्टूडेंट्स देखिए यहां पे जो चारों नाम हैं उसमें एक चीज आपको क्लियर है, इट कांट बी स्मिथ, बिकॉज स्मिथ का कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी में नहीं मिलेगा। सो ये नहीं हो सकता। देन देखिए यहां पे जो सही बात है, बिकॉज यहां पे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट की बात करी गई है, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट सीधे सीधे हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है कार्ल मार्क्स का। आई थिंक आंसर सी शुड बी राइट। यस इट्स सी, बिकॉज कार्ल मार्क्स ने ही बात करी थी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट की, कि जब कोई भी दो पार्टीज के मोटिव अलग अलग होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा उन्होंने क्लास स्ट्रगल के केस में भी बोला हुआ था, राइट? बिकॉज उन्होंने एक तरफ तो कैपिटलिस्ट को डिफाइन किया था कि जिसके मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनका अलग मोटिव होता है, एंड जिनके जो वर्कर्स हैं उनका अलग मोटिव है, एंड फ्रिक्शन ऑफ दोज मोटिव्स कैन प्रोड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल। सो राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। Come to the next, that is match the following measures suggested with the committees or acts. Here basically we want to discuss the types of bargaining with its approaches. So 4 types of bargaining is given: distributive bargaining, composite bargaining, integrative bargaining and productive bargaining. So here distributive bargaining is win-loss situation. Then composite, first we will discuss integrative with this one, distributive with win-loss, then yes, distributive, composite, integrative and productive. So on the other hand, win-win, win-loss, rationalization, system and method improvements. So first of all, distributive is win and loss, integrative is win-win, composite can be your rationalization, and D is 4th one. So the right answer should be answer A is 2, B is 3rd, C is 2. Yes, it should be A. Yes, right answer is A. Why? Because distributive, ये चारों ही आपके क्या है, ये बार्गेनिंग के टाइप हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज अ विन लॉस सिचुएशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस को विन लॉस सिचुएशन में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम आपको पता होगा, जिसमें एक पार्टी का फायदा दूसरे का लॉस होता है। तो ऐसी बार्गेनिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटिव और कंजंक्टिव टाइप ऑफ बार्गेनिंग बोलते हैं। सेकेंड इज योर कंपोजिट। कंपोजिट इज मिक्सचर ऑफ दैट। रेशनलाइजेशन से इसको इसलिए किया हुआ है बिकॉज
रीथिंकिंग अबाउट अ बिजनेस एक्टिविटी, कि हम अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड। तो सारी ही चीजों का वो मिला जुला रूप है in order to make our system and organization more improved. That's why rationalization has been matched with the composite one. And what is the integrative bargaining? Integrative bargaining को हम win-win approach रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग एक पॉजिटिव अप्रोच होती है जिसमें दोनों ही पार्टी जो कि बार्गेनिंग का पार्ट है वो दोनों ही विन विन सिचुएशन में होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। लास्ट इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग इज ओनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई सिस्टम एंड मेथड इंप्रूवमेंट इज मैच्ड विद द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। सो राइट आंसर इज योर आंसर ए। सो कम टू द नेक्स्ट वन, 9. Under unitary approach, industrial relation is grounded in, देखिए अब यहां पे क्या है, अब हम आ गए हैं आईआर की थ्योरीज पे। जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज पढ़ते हैं जिसको हम अप्रोचेस टू आईआर भी बोलते हैं, तो उनमें बहुत सारी हमारी थ्योरी है, राइट। तो उसमें जो प्राइमरी थ्योरी है, द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज यूनिटरी अप्रोच और यूनिटरी थ्योरी। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, एज पर यूनिटरी थ्योरी mutual cooperation should be there, yes. Then individual treatment वो भी होना चाहिए, and teamwork and share goals. So all three are true about the unitary approach. So all of the above means answer D should be right. Yes, answer D is the right answer. कैसे? क्योंकि unitary approach of industrial relation ये कहता है कि rather than considering two parties, labor and management, because हम उनको अगर two parties आइडेंटिफाई करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब जब दो पार्टीज होंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड कॉन्फ्लिक्ट विल रिजल्टेड इनटू रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को कॉमन मान रहे हैं। Whatever the function of the organization, what is the motive of the organization is the motive of the employees also, right? So that is the unitary approach. वो दोनों दो पार्टी ना होकर के एक ही पार्टी हैं, and the shared goals are the goals of both the parties. शेयर्ड गोल एक ऐसा टर्म है जो कि सभी के गोल्स, कॉमन गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द टीम वर्क उस केस में होता है जहां पे हम सभी यूनाइट होकर के अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू अटेनमेंट दी कॉमन गोल्स, राइट। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट क्यों है? बिकॉज हर एक पर्सन के अपने अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट होती हैं, दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर टू पीपल एज अलाइक। Then mutual cooperation, as we all know that both the parties should take the initiative for the betterment of each other, right? So all of the above, यानी आंसर डी सही है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें आपकी यूनिटरी अप्रोच के केस में देखने को मिल जाती हैं। Come to the next question, that is question number 10. Which one of the following is not a machinery for settlement of industrial dispute अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आईआर का बहुत अहम हिस्सा है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बहुत सारी सेटलमेंट मशीनरी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट and how can we remove those disputes and reason behind those disputes, ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ते हैं। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी मशीनरी नहीं है डिस्प्यूट सेटलमेंट की। इससे जस्ट 2 क्वेश्चन पहले भी हमने पूछा था, जिस केस में कंसल्टेशन को माना गया था कि वो किसी भी एंगल से एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है कंसल्टेशन। यहां पे क्या है, यहां पे कह रहे हैं एज पर Industrial Dispute Act, because Act defines the dispute settlement machinery as per its provision। तो यहां पे हमें ये बता, इसमें उसमें ये फर्क है कि यहां पे स्पेसिफिक एक्ट जो है आईडीए 1947, उस पे आधारित हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला डिस्प्यूट सेटलमेंट की मशीनरी नहीं है। द वेरी फर्स्ट इज कंसिलिएशन ऑफिसर इज राइट। क्यों? क्योंकि ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी में कंसिलिएशन आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के 3 तरीके होते हैं, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। कंसिलिएशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कंसिलिएशन ऑफिसर, देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट। 3 पार्ट होते हैं।
एडजुडिकेशन का कोई पार्ट नहीं होता है। आर्बिट्रेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। इन दिस वे वी कैन सी दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग कहीं से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी नहीं है, बिकॉज दिस इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रिवेंशन मशीनरी। सो राइट आंसर शुड बी आंसर सी। यस, सी इज द राइट आंसर। Come to the next 11. Again match the column, match the followings, column 1 with column 2, list 1 with list 2. First is JMC, then second is Works Committee, then ILO and First National Commission. अब देखिए लिस्ट 2 में आपके ईयर्स दिए हुए हैं, किस साल में कौन सा पारित हुआ, that is the important one. So we all know that ILO is 1991, 1919, it is the right match. Then if we talk about JMC, so 1958 is the right one. Then Works Committee in 1947, this is the right, and so they all are right matched. It means option A, B, C, D should be the right answer. Answer A. Yes, A is the right answer because there is no need to match because सभी सही लिखे हुए हैं। जो आपका JMC है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जो कि 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स जहां पे काम करते हैं वहां पे लगता है, दैट वाज कम इन 1958। वर्क्स कमेटी जो कि 100 और मोर वर्कर्स पे लगता है वो 1947 का पार्ट है, ILO 1919 का पार्ट है, और फर्स्ट नेशनल कमीशन इन 1969. They all are well matched. There is no need to match it. So right answer is answer A. Come to the next. Who had advocated the system approach model? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। सिस्टम अप्रोच मॉडल किसने दिया था? व्हाट इज द सिस्टम अप्रोच मॉडल? इसको हम 3 टियर सिस्टम भी बोलते हैं, 3 टियर सिस्टम। ये है क्या बेसिकली? ये आपका सिस्टम अप्रोच बेसिकली दिया गया था डनलप के द्वारा, जॉन डनलप। व्हाई? बिकॉज एज पर हिम industrial relations is a tripartite model. That's why he used the term 3-tier system. Means labor, management and government, 3 लोग involve होते हैं. They are the 3 major players in industrial relations, जिसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, और इसको उन्होंने सिस्टम अप्रोच के तहत बोला था। एंड गवर्नमेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर लॉ। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल लेबर लॉ किस तरीके से किस किस एरिया में लगाने चाहिए, कौन कौन से अमेंडमेंट है, कौन कौन से इंप्रूवमेंट है जो उस फील्ड में होने चाहिए, दैट कैन बी डन थ्रू द लेबर पार्ट, गवर्नमेंट पार्ट। दैट्स व्हाई as per system approach industrial relation is a tripartite